my name is Susanna John. I am practicing in Gorakhpur since almost 4 years now as a consultant clinical psychologist, and I usually deal with all the mental health issues. Very basic question. Like, you have chosen your degree and masters, and currently you are doing PhD. Yes. So why did you choose masters in clinical psychology and pursuing PhD now? Okay, yeah. So ideally, the field that I am in, to be a clinical psychologist, you have to pursue a master's, that is MPhil in clinical psychology. So it is very different from the formal MPhil that was there, that used to be there. Now there is no MPhil degrees in India. The government has gotten over it. So it's ideally a course run for training you to see the clinical aspect of the. When you asked about PhD, so ideally when you do MPhil in clinical psychology, PhD is not What needed. influenced you that you took psychology as a As a study? career. Okay, so that's a funny story. So ideally I did my 12th from commerce. So usually यही होता है ना कि कॉमर्स कर लिया है तो बीकॉम कर लो, हाँ. तो लेकिन मुझे बीकॉम नहीं करना था. So I took arts because obviously BSc was not an option for me. After like After completing your completing 12th. your 12th, so I went for bachelor in arts. उसके पहले I wanted to do fashion design, but my mother didn't agree for that. So when I took a Bachelor of Arts, we had to choose 3 subjects in Bachelor of Arts. So I already took economics because I was an economics student. The other was English. I was an English student. And the third subject, there was nothing for me to think about. So there were 2 subjects that were optional, in which there was a practical aspect. Because उस टाइम ये होता था कि practical subject ले लो नंबर ज़्यादा आते हैं, ठीक है. So I took psychology because I didn't want to take geography. So is there any fun game like situated with your clinical psychology, or it's very tough time? The clinical psychology part, it's not a tough time, I would say, but yeah, it's a very drastic shift because we go from an academic background to a clinical setting. So we are not trained for anything like that. We are not trained for handling patients. We are trained for nothing. But when we go to a medical college, everything comes as a culture shock to us. But then eventually you adjust. So it is hard to adjust. तो जैसे हम लोगों ने सुना है कि मतलब आप किसी भी अगर डॉक्टरी में फील्ड में जाओ और अगर आप किसी कॉलेज ऐसे जा रहे हो तो आपको हमेशा रैगिंग सुनने में आता है, वो कि रैगिंग बहुत होती है. तो आपके साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ है? हाँ, रैगिंग सबके साथ होती है, ठीक है. ऐसा नहीं होता है कि रैगिंग कोई बहुत खराब चीज़ है. रैगिंग एक लेवल पे जाके खराब हो जाती है. तो हम लोगों की तो ये ऐसी कोई बात नहीं है. मेडिकल कॉलेज में एक हायरार्की चलती है जूनियर सीनियर की. और रैगिंग एक्चुअली में क्या होता है कि एक सीनियर अपने जूनियर को काम करना सिखा रहा होता है. उसमें कई बार कई चीज़ें वो ऐसी बोल देता है या कर देता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है. जैसे हमने आपको कोई ताना मार दिया, ठीक है, या फिर हमने आपको रात को 12 बजे फ़ोन करके बोला कि वो केस जो तुमने सुबह देखा था उसको ब्रीफ करो. तो आई एम हैम्परिंग योर स्लीप, ठीक है. सो दिस इज व्हाट काइंड ऑफ रैगिंग. आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस स्टार्ट किया तो आपको क्या डिफरेंसेस लगे, एक जो काउंसलिंग साइकोलॉजी होती है एंड एक जो क्लिनिकल साइकोलॉजी होती है? जो काउंसलिंग साइकोलॉजी होती है वो मेनली मास्टर्स में पढ़ाई जाती है, मतलब MA इन साइकोलॉजी, जो कि हम बैचलर्स के बाद करते हैं. तो उसमें क्या होता है कि आपने सारी थ्योरी पढ़ा दी. ये CBT ऐसी दिखती है, DBT ऐसी दिखती है, ECT ऐसी दिखती है, तो हमने सारा कुछ पढ़ा दिया, ठीक है. फिर उसके बाद वहाँ पे कोई हैंड्स ऑन एक्सपोजर नहीं है, कोई क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं है. यू आर लेफ्ट आउट इन द वाइल्ड. अब आप फिगर आउट करते रहिए आप क्या कर रहे हैं, ठीक है. सो दैट इज व्हाट इज बेसिकली काउंसलिंग साइकोलॉजी का कोर्स, ठीक है. बट व्हेन वी कम टू द काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट, देयर इज अ डिफरेंस बिकॉज आफ्टर मास्टर्स देयर आर डिप्लोमाज ऑल्सो अवेलेबल, ठीक है. जैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, PGDGC बोलते हैं उसको. तो उसमें क्या होता है कि वो 1 साल का डिप्लोमा है जिसमें आप मेनली गाइडेंस एंड काउंसलिंग पे और ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, ठीक है. और थोड़ा बहुत एक्सपोजर होता है. तो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट मेनली स्कूल्स में काम करते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, है ना, जहाँ पे क्लिनिकल केसेस नहीं. पर जब आती है क्लिनिकल एस्पेक्ट्स की बात, जैसे हमने कहा कि भाई पैथोलॉजिकल लेवल की एंजाइटी हो गई, इतनी
ज़्यादा हो गई है कि वो बच्चा क्लास में बैठने से भी डर रहा है, वो बच्चा बाहर निकलने से भी डर रहा है, उस बच्चे ने अवॉइड करना शुरू कर दिया है लोगों को, वो किसी से बात नहीं करता है, घुलता मिलता नहीं है, उसको एलिवेटर क्लोज स्पेसेस में उसको डर लगने लग गया है। तो वहाँ पे काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट का रोल नहीं है, वहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का रोल है, क्योंकि आपको स्ट्रेसर ढूंढना है, ट्रिगर ढूंढना है, उसके बेसिक हिस्ट्री क्या है ना, उसकी पर्सनल हिस्ट्री क्या है, फैमिली में कुछ ऐसा तो नहीं हुआ है कि भैया फैमिली में ही किसी को एंग्जाइटी है, वही इनहेरिट कर रहा है, बच्चा पैटर्न्स तो नहीं सीख रहा है। So there is a lot of other work as well to go into the clinical aspects. So there a clinical psychologist is a better fit for that kind of treatment. सो मैम जब आप अपने वर्क स्टार्ट किए तो आपको मेनली ऐसी कौन कौन सी मेंटल कंडीशंस आपको सामने ड्यूरिंग योर वर्क? ठीक है, तो वर्क तो जैसे अगर हम वर्क की बात करें तो हमारे ट्रेनिंग में स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम लोग भी जब मास्टर्स के बाद एमफिल में जाते हैं तो हमें कोई पढ़ाता नहीं है, हम बस क्लिनिकल एक्सपोजर ले रहे हैं, तो केसेस तो वहीं से शुरू हो जाते हैं। क्लिनिकल एक्सपोजर इन द सेंस लाइक इंटर्नशिप और इंटर्नशिप नहीं, फुल फ्लेजेड वर्क, रेजिडेंट वर्क, जूनियर रेजिडेंट की तरह। ठीक है, आप वहीं रहेंगे, वहीं खाएंगे, वहीं पिएंगे, वो हॉस्पिटल आपको पे करेगा और आप वहाँ हॉस्पिटल में एज ए जूनियर डॉक्टर काम करेंगे, तो काम तो वहीं से शुरू हो जाता है। तो अगर हम उस समय की बात करें तो मेरे पास IQ के केसेस बहुत ज़्यादा थे। हाँ, और एक और क्लिनिकल साइकोलॉजी को जो एस्पेक्ट है मैं बता देती हूँ कि हम लोगों के पास टेस्टिंग का लाइसेंस होता है, तो जैसे सारी चीज़ें CTMRI में नहीं आ सकती। So a lot of things, especially in psychiatry, when we talk about psychological illness, when we talk about psychiatric illnesses, तो उसमें दिमाग में आपके क्या चल रहा है आप नहीं पता लगा सकते CTMRI से। तो कई सारे साइको डायग्नोस्टिक टेस्टिंग या फिर पर्सनालिटी टेस्टिंग या फिर IQ टेस्टिंग, अगर आजकल ऑटिज्म के लिए आपने देखा होगा कि ईसा और ये सारे टेस्ट, जितने भी ये टेस्ट हैं, वी आर द सर्टिफाइड क्लिनिशियंस टू डू दैट। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के नाम पे, और अगर कोई कर भी रहा है तो उसके पास लाइसेंस नहीं होता। वो रिपोर्ट आपने गोरखपुर में आए जब मैंने अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया तो यहाँ स्पेक्ट्रम चेंज है, यहाँ पे डिप्रेसिव इलनेसेस ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे एंजाइटी वाले पेशेंट्स ज़्यादा हैं, जैसे बेसिक जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स वाले या फिर सोशल एंजाइटी, वो यहाँ पे बहुत इस एरिया में बहुत पाए जाते हैं। यहाँ पे उतना IQ और ये सब उतना वो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास दूसरी जगहें हैं जो वो चीज़ें कर रही हैं। तो अगर मैं अपनी प्रैक्टिस की बात करूँ तो यहाँ पे मोस्टली मेरे पास एंजाइटी स्पेक्ट्रम, डिप्रेशन वाले और ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स वाले अक्सर कर पेशेंट्स हैं। तो अभी आई थिंक हम लोग के लिए एक बहुत एकेडमिक एक्सपेक्ट से और उस क्लिनिकल एक्सपेक्ट से हम लोग की एक कन्वर्सेशन हो गई। सो लेट्स स्विच इट, we'll do a very small rapid fire round. So it is a very fun questions. So we'll start with it. So you have to answer those in either 5 seconds or within 10 seconds. Okay, that is it. Okay, so first one, coffee or meditation before a long day? Coffee. Books or podcasts for mental health learning? Books. One word your students or patient use to describe you? I seriously don't have an answer to that question. But मेरे जूनियर्स मुझे कहते थे कि मैम का जब मूड अच्छा होगा तब बात करेंगे। So I was a very moody person back then. So we can describe you as a moody person. Yes. Okay. If not psychology, what career would have you chosen? I would be in medicine only, so probably a doctor. Doctor. Okay. That's a nice thing. What is happiness for you? Happiness is happiness. Happiness is being excited for me, I guess. Excited for? Excited for a lot of things. Waking up in the morning and looking after my child, that is the biggest happiness as of now. Okay, we'll end this fun activity rapid fire round and we'll move on to our further questions. जैसे आप लोग ने बहुत सारी इसकी थेरेपी आप लोग ने लर्न की होगी, प्रैक्टिकली अप्लाई भी की होगी, तो आप तो बेसिकली with your like clients or we can say with your patients, what type of therapy do you use? Okay, so there are a lot of therapies in psychology and we can use any therapy, ठीक है, बट जब भी हम साइकोथेरेपी या काउंसलिंग की बात करते हैं तो आप लोग आम भाषा में काउंसलिंग कहते हैं, तो उसमें हम हमेशा कस्टम मेड टेलर अप्रोच फिट यूज करते हैं। मतलब हमारे क्लाइंट के ऊपर क्या सूट करता है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी लर्न कर ली तो
सब पे CBT लग गई, नहीं, पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। तो एक नया टर्म आया है ना, जिसको हम कहते हैं सपोर्टिव काउंसलिंग, है ना, या फिर सपोर्टिव थेरेपी। तो उसमें हम 2-3 अप्रोचेस को मिला के वो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। या फिर उसका और एक टेक्निकल वर्ड है जिसको हम कहते हैं इक्लेक्टिक अप्रोच। तो इक्लेक्टिक अप्रोच का मतलब होता है कि हमें लगता है कि अच्छा CBT से ये पार्ट आएगा तो हम CBT से ABC मॉडल उठा लेते हैं, है ना। फिर अगर हमें लगता है कि अरे थोड़ा सा पर्सनैलिटी इशू भी है तो शायद DBT का भी कुछ पार्ट यूज़ कर सकते हैं, तो हम डायलेक्टिकल में से माइंडफुलनेस उठा लेते हैं, ये सारी चीज़ें हम उठा लेते हैं, है ना। फिर अगर हमें लगेगा कि नहीं साइको एजुकेशन भी काम करेगा, सबसे पहले अटेम्प्ट में तो हम साइको एजुकेट ही करेंगे, तो फिर हम साइको एजुकेशन भी, तो इसको हम इक्लेक्टिक अप्रोच कहते हैं, जो कि हमारे इंडिया में बहुत How do you handle your clients when they are reluctant to open up? Yes, okay, so that is a very good question that you have put up. So every client is not very comfortable in opening up in the first few sessions. तो मेरा जो सबसे अच्छा तरीका है कि I give them their time and space to open up. तो कई बार क्या होता है ना कि जब when we are taught therapy, तो कई बार हमें लगता है कि बस हम हर मरीज को ठीक कर दें, जल्दी से ठीक कर दो ना, क्यों इतना सफ़र कर रहा है, इतने दिनों से सफ़र कर रहा है और हमारे पास आया तो बहुत उम्मीद लेके आया, तो उसको ये भी बता दो, ये भी बता दो, ये भी बता दो। लेकिन अगर हम उसको 10 होमवर्क दे देंगे और वो एक पे भी रेस्पॉन्ड नहीं करेगा तो फिर हमारे रिजल्ट 0 होंगे। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, मैं कभी कभी बस एक्टिव लिसनिंग करती हूँ, ठीक है, ताकि पेशेंट आके खुले। 1 में नहीं खुलेगा, 2 में नहीं खुलेगा, 3 में नहीं खुलेगा, चौथे 5वें तक बंदे नो कि ओके सामने वाला सुन रहा है, नींद नहीं मुझे, तो फिर वो धीरे धीरे करके ऑटोमेटिकली खुलना शुरू। हम लोग ने एक मतलब एक टर्म हम लोग को और डिस्क्राइब होता है न्यूरोसाइकोलॉजी। सो व्हाट इज योर कॉल ऑन दैट? ठीक है, न्यूरोसाइकोलॉजी एक बिल्कुल अलग ब्रांच, अब एक लियाजनिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है। तो लियाजन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और आप एक MD मेडिसिन डॉक्टर, ठीक है, मान लो, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने कहा कि भाई हमारा मरीज आया है इस पॉइजनिंग के साथ और हमारे वार्ड में भर्ती हो गया है, ठीक है, लेकिन पॉइजनिंग तो उसने कर ली, अब आप मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे ना, सबसे पहले उसको बचाएंगे, ठीक है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है अभी, ठीक। लेकिन जब वो स्टेबल हो जाता है, जब वो ठीक हो जाता है, तो दोबारा वो हरकत ना करे। जब हमें ये पता लगता है कि ओके इट वाज अ सुसाइड अटेम्प्ट, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, एक कॉल मुझे भेजते हैं कि हाँ एक बार साइकोलॉजी वाला आके इसको असेस कर ले कि ऐसा क्यों हुआ और आगे ऐसा ना हो। इसी को हम कहते हैं लियाजनिंग, जहाँ पे 2 अलग फील्ड्स के प्रोफेशनल एक पेशेंट की बेहतरी के लिए काम करते हैं, ठीक है। सो लाइक जैसे इंडिया में वी कैन हियर नॉट इन अब्रॉड, बट इंडिया में ज़्यादा है कि हम लोग जब ऐसे कोई भी केसेस आते हैं बच्चे के, तो उनको लोग एक टैग दे देते हैं कि ये पागल हो रहा है, एंड मेनली अगर जो उसको ट्रीट करता है उसको वही नेम ही दे दिया जाता है कि ये पागल डॉक्टर है। सो व्हाट इज़ योर कॉल ऑन दैट? ओके, एक्चुअली वो एक बहुत गलत, मैं क्या कहूँगी, इट्स वेरी रॉन्ग कल्चर टू लेबल एनीबॉडी एज मेंटल और मैड। तो बाहर इसलिए नहीं है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है ना, और बाहर गवर्नमेंट ओपन अप, यस, बाहर गवर्नमेंट इन इश्यूज को सपोर्ट करती है, ठीक है। वी इन इंडिया बीइंग अ हाईली पॉपुलेटेड कंट्री, हमारे में गैप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना 80% ऑफ द पीपल आर पुअर एंड 20% आर द रिच। अब तो वो और कम होता जा रहा है, अब तो बस 10% के पास ही वेल्थ है और मोस्टली 90% आर पुअर, या फिर मिडिल क्लास है या फिर लोअर मिडिल क्लास है। तो क्योंकि ये लोग उन चीज़ों को समझते नहीं है, पहली बात, क्योंकि जो एकदम ही लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाला जो स्ट्रेटा है ना, जहाँ पे अनडाइग्नोज्ड मेंटल इलनेसेस है, ठीक है, तो क्योंकि वो पढ़े लिखे ही नहीं है, तो आप उनको कैसे समझाएंगे कि आपको एक मानसिक बीमारी, क्योंकि वो दिखती तो है नहीं, आँख में कोई दिक्कत हो जाएगी, मेरी आँख बंद हो जाएगी तो सबको पता लग जाएगा कि मेरी आँख में कोई दिक्कत है ना। तो ये चीज़ें ज़्यादा अटेंशन पाती हैं, और सिंस मेंटल इलनेसेस आर नॉट विजिबल, पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इट, तो लोगों ने कल्चर बना लिया है कि आया पागल है, बट दैट इज एक्चुअली द मोस्ट अनएथिकल थिंग दैट वी कैन डू टू एनीवन, ठीक है। सो लाइक आपके जो पेशेंट्स आते हैं उनके साथ उनके पेरेंट्स भी आते होंगे इफ दे आर चिल्ड्रन, सो जो अडल्ट्स आते हैं दे विल तो कम अलोन, बट जो चिल्ड्रन आते हैं कभी कभार उनके पेरेंट्स भी
मिसजज करते हैं। यस, तो वो चीज़ आपके साथ भी होता है? ये स्थिति तो अभी मेरे पास नहीं आई है कि पेरेंट्स मुझे काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन कर लेते हैं कई बार, क्योंकि क्या होता है कि पेरेंट्स भी बहुत ठीक है, अगर किसी ने होमवर्क किया भी, अगर उनको कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मुझे क्वेश्चन तो पुट अप करेंगे ही करेंगे। तो ऐसा होता है, एक दो बार हो जाता है, कभी कभार एक आधा बार, कि पेरेंट्स उनके अपने डाउट्स होते हैं और वो कई बार मिसजज कर जाते हैं, लेकिन उसमें उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि उनको पता नहीं है। अगर उनको बता दो, अगर उनको साइको एजुकेट करो कि नहीं आपके बच्चे को ये दिक्कत है और वो ऐसे ऐसे ठीक हो जाती, तो वो कोऑपरेट करते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। कोई बेसिक ऐसा डिफरेंस है अडल्ट साइकोलॉजी जो आप रीड करते हो एंड जो चिल्ड्रन साइकोलॉजी होती है? एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, दोनों के डिसऑर्डर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लाइक एज ग्रुप बहुत मैटर करता है। जब भी हम किसी भी साइकाइट्रिक इलनेस की बात करते हैं तो उसमें एपिडेमियोलॉजी यूज होता है, तो जिसमें मेल फीमेल आ जाता है, एज ग्रुप आ जाता है, और कौन से एरिया में कौन सी चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं, कम पाई जाती हैं, किस तरीके का एनवायरनमेंट है, ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। तो उसमें अकॉर्डिंग टू द इलनेसेस एपिडेमियोलॉजी चेंज